Hello my dear friends, once again myself Alimuddin Sheikh Qadri and my YouTube channel is Alimuddin Sheikh Qadri and my coaching classes is Qadri Coaching Classes. Through Qadri Coaching Classes I have once again told you today we will have discussing here very important and intellectual lecture. This one is simply we call to the class Insecta. Class Insecta. It means a large categories of class. So my dear friends, today we have already been discussing here class Insecta, insects. Majority of insects have simply occur in this phylum, and those phylum is simply belong to the phylum Arthropoda. Phylum Arthropoda. Arthropoda, simply we have now here what is the simple meaning of the arthropoda. It means they have simply be discussing here very important points. What is the nature of the arthropoda? So my dear friends, my dear students, we will have the discussing here. We will have the discussing here. Since we have discussing here arthropoda, what is the simple meaning of the arthropoda? So my dear students, my dear friends, and loving students of class 11th, please you know what is the simple meaning of arthropoda. Arthropoda, there are two terms are here. Arthropoda, their Greek term arthro. Arthro means jointed. Arthro means jointed. They have joined to each other, right? Like jointed. And poda. Poda means legs. Jointed legs. Simply meaning arthropoda is like, you see this here? Arthropoda. Arthropoda. Arthro. Arthropoda. Jointed. Jointed. Poda means leg. So my dear friend, jointed legs. Majority of animals, their legs are jointed. Jointed legs. It means यदि हम यह कहें कि पूरे विश्व जगत में because of this is also we call to the cosmopolitan. The arthropoda phylum arthropoda is simply we call to the cosmopolitan. यह विश्वव्यापी है. अब विश्वव्यापी का रीजन मतलब यह होता है कि जो विश्व के प्रत्येक स्थानों पर पाया जाए. नॉट ओनली इन अवर इंडिया, हमारे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व जगत में पाया जाए. देन वी हैव सिंपली वी कॉल टू दिस वन इज द बिलोंग्स टू द आर्थ्रोपोडा. तब हम इसे कहेंगे कि आर्थ्रोपोडा से बिलोंग कर रहा है. तो आइए देखते हैं कि करके. मैंने कहा सिंपल टॉपिक मैंने दिया कि विश्व का यह सबसे लार्जेस्ट फाइलम है. लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द वर्ल्ड. आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द वर्ल्ड. Is simply be seen to 9 lakhs species. How many lakh species? 9 lakhs species are known. 9 लाख जातियां इसकी ज्ञात हैं, जानी जाती हैं. And those are simply be in the case of all over worlds, it number of 80%. 80% are simply be arthropoda. 80% जातियां जो होती हैं वो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती हैं. इसमें मैंने बताया आर्थ्रोपोडा द मेजॉरिटी ऑफ पॉइंट्स ऑफ हियर इन द क्लास ऑफ आर्थ्रोपोडा और क्लास इंसेक्टा. विद इन द क्लास इंसेक्टा सिंपली बी अकर टू द कंपाउंड आइज. सिंपली बी अकर टू द कंपाउंड आइज. Not be a simple eyes, simply we are to compound eyes. इसमें संयुक्त नेत्र पाया जाता है. And ventricles are also be seen. They have very sensitive portion, very sensitive organ. So here, this one is the dioecious. This one is the dioecious. Means एक लिंगी होता है. Male and female, both sexes are separate. Both sexes are separate, not be same. मेल अलग होता है और फीमेल अलग होते हैं. इसीलिए इसको बोला गया डायोसियस, एक लिंगी.
मोनोसियस नहीं, मोनोसियस में एक में ही दोनों लिंगी होते हैं, लेकिन यहां पर डायोसियस बोला जा रहा है। डायोसियस मीन्स होता है एक लिंगी, मीन्स मेल अलग होगा, फीमेल अलग होंगे। और टर्म के विषय मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस करके बता दिया। यदि हम टर्म को ध्यान में रखें तो आता है कि आप ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं इसमें, एंड मेजॉरिटी ऑफ स्पीसीज आर सिंपली बियकर। एंड इन द क्लास ऑफ इंसेक्टा, आइए देखते हैं जरा सा। मैंने फाइलम डिस्कस किया आर्थ्रोपोडा, जैसे मैंने कहा 9 लाख स्पीसीज आर सिंपली बिनोन। दिस वन इज कॉस्मोपॉलिटन, विश्वव्यापी है, 9 लाख जातियां इसमें पाई जा रही हैं। बट इन द केस ऑफ हियर, अब हम डिस्कस कर रहे हैं इन द केस क्लास ऑफ इंसेक्टा। अगर इंसेक्ट के क्लास को देखा जाए तो देयर इज वेरी लार्ज क्लास। अब तक जितने भी क्लास डिस्कस किए गए, जितने भी क्लास आपको पढ़ाए गए, सारे क्लासों में सबसे लार्ज क्लास इंसेक्टा का होता है। माय लविंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th also you have read in which types of animals are harmful, in which types of insects are harmful for us, in which types of insects are useful for us. Harmful, those who are shown to the harmful effect of our crops. Crops are also be damaged. Crops are also be damaged, cursed, नष्ट हो जाती हैं इन इंसेक्टों के द्वारा, कीट पतंगों के द्वारा। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट्स दोज हैव शोन टू द वेरी हार्मफुल इफेक्ट। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं जो देखने को मिल रहे हैं जिनसे आपने देखा बहुत ही हानिकारक प्रभाव स्थापित होते हैं। तो इसमें अब तक अगर हम कीट वर्ग को देखें, इंसेक्टा को देखें, तो इंसेक्टा में अभी अब तक लगभग 80,000 जातियां ऐसी, 80,000, ध्यान दीजिए, 80,000 जातियां ऐसी हैं जो कि इंसेक्टा के अंतर्गत आती हैं। जिसमें आज हम जिस एनिमल का अध्ययन करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, वह एनिमल होगा कॉकरोच। क्या होगा? कॉकरोच। आर्थ्रोपोडा मैंने बता ही दिया आपको कि जिसमें जॉइंटेड लेग्स होते हैं। और जैविक सफलता का इसका मेन रीजन आप जान लीजिए, किसका जैविक सफलता क्या है इसकी जैविक सफलता का महत्वपूर्ण रीजन यह होता है कि इसका फाइलम आपने देखा बहुत ही लार्ज है, लगभग 9 लाख जातियां इसमें पाई जा रही हैं। भोजन ग्रहण करने की अलग अलग विधाएं इसमें होती हैं, रिस्पायरेशन की अलग अलग विधाएं होती हैं, जनन की अलग अलग विधाएं होती हैं, लोकोमोशन की अलग अलग विधाएं होती हैं। कहीं फ्लाइंग लोकोमोशन करता है, कहीं मूविंग लोकोमोशन करता है, कहीं जो है रनिंग लोकोमोशन करता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कहीं पर धीमी गति से चल रहा होता है, आराम के साथ चल रहा होता है। तो कोई एनिमल इसका नॉक्टर्नल होता है, नॉक्टर्नल रात्रिचर। कोई एनिमल इसका नॉक्टर्नल होता है, कोई एनिमल इसका जो है वो आप डे टाइम में देखते हैं, दिन में देखते हैं आप। तो नॉक्टर्नल एनिमल्स की कैटेगरी में आता है कॉकरोच, जो आपको रात्रि में ही दिखाई देगा, दिन में नहीं दिखाई देगा। तो ये दिन में बहुत ही कम दिखाई देते हैं, बहुत ही रेयर केसेस में दिन में दिखाई देंगे, नहीं तो रात्रि में हमेशा उन स्थानों पर पाए जाएंगे जहां पर कि इनको आसानी से भोज्य पदार्थ उपलब्ध हो सकें, इस तरह से आपने देखा इनकी सफलता का बहुत ही कारण है। कई कारण मैंने बताया। इनके जो बॉडी के जो एक्सोस्केलेटल होते हैं वो काइटिनस होते हैं, बाह्य कंकाल इनका काइटिनस होता है, बॉडी बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है, और फ्लैटेंड एनिमल्स होते हैं, चपटे एनिमल्स होते हैं, कहीं भी आसानी से जाकर के छिप सकते हैं। जैसे हमने देखा कि हमारे रसोई घरों में भी जाकर के छिपे रहते हैं, गोदामों में छिपे रहते हैं, ऐसे स्थानों पर ये छिपे रहते हैं जहां से अनाज की मात्रा इनको समुचित रूप से मिलती रहे, अनाज की मात्रा वहां पर इनको समुचित रूप से मिलती रहे, भोजन की मात्रा इनको समुचित रूप से मिलती रहे। अर्थात ये भोजन के लिए आसानी पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं, गमन करते हैं, और अपने शत्रु का जरा सा भी आभास होने पर फ्लाइंग कर जाते, उड़ जाते हैं। बट दे आर पुअर विंग्स, इनके पंख जो है कमजोर होते हैं, इसलिए दे हैव नॉट गॉट टू द लॉन्ग फ्लाइंग, इसलिए ये लंबी दूरी तय नहीं कर सकते उड़ करके, फ्लाइंग करते हुए लंबी डिस्टेंस को तय नहीं कर सकते। बट दे आर रनिंग, दे आर मूविंग टू द वेरी फास्ट, बहुत तेजी के साथ भागते हैं। ध्यान दीजिएगा, चलना, भागना, उड़ना, ये तीनों कंडीशन में पाई जाती है। आसानी से चलते भी हैं भोजन के लिए, स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई, ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो गई जहां पर भागते हैं, बहुत तेज से रनिंग करते हैं, ऐसी कंडीशन डेवलप हो जहां पर फ्लाइंग करते हैं।
अर्थात उड़ते हैं। तो आपने देखा कि इसमें ढेर सारी कंडीशंस आ रही हैं जहां पर कि नेचर आपको शो करने किए जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आइए देखते हैं इसका क्लास क्या है कॉकरोच का। मैं आपको कॉकरोच के विषय में स्टडी करवाना चाह रहा हूं और इंसेक्ट कितने हार्मफुल है, कितने भी यूजफुल हैं। ऑलरेडी क्लास 9th में इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस में जो है, जहां पर आपको इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस लेसन में जो ऑलरेडी मैंने कल डिलीवर्ड किया है अपने यूट्यूब चैनल से, उसमें आपने देखा कि इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस में मैंने इंसेक्ट का भी डिस्कशन किया है, काफी लार्ज अमाउंट में इंसेक्ट के डिस्कशन किए हैं। अब यहां पर ये देखते हैं, आज की स्थिति में देखते हैं हम कॉकरोच की जो है क्लासिफिकेशन देखा जाए कि कॉकरोच का क्लासिफिकेशन क्या है। सबसे पहले तो हमें बताना चाहेंगे माय डियर फ्रेंड, कॉकरोच टर्म ही एक ऐसा टर्म है जो कि कॉकरोच सिंपली नॉट टू बी कॉकरोच, कॉकरोच इज मीन्स इज मेड अप बाय द ग्रीक वर्ड ऑफ द कुकारोचा। कॉकरोच शब्द जो है या कॉकरोच हम और आप इसको लैंग्वेज ले रहे हैं, बना किससे है? कॉकरोच शब्द बना है कुकारोचा से। तो कॉकरोच जो हमारे यूज सामान्य समय का है या स्पेनी भाषा का है, कॉकरोच शब्द जो है स्पेनी भाषा के कुकारोचा से बना है। कुकारोचा, ये कुकारोचा से बना है। भारत में अभी अब तक इसकी जो स्पीसीज पाई जा रही हैं, उन स्पीसीज का हम आपको सिंपली नाम बता दें कौन कौन सी स्पीसीज भारत में पाई जा रही हैं। तो आप लोग ध्यान से इसको नोट करते चलिएगा, लिखते चलिए, जितने भी पॉइंट्स आप लोग बताए जा रहे हैं वन बाय वन करके आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। तो यहां पर देखिएगा कि पहले तो हम आपको बता दें जर्मन कॉकरोच, जर्मन कॉकरोच जो आप जिसका नाम है ब्लाटा जर्मैनिका, नोट डाउन, ब्लाटा जर्मैनिका, या इसको ब्लाटेला जर्मैनिका भी कहा जाता है, ब्लाटेला जर्मैनिका या ब्लाटा जर्मैनिका। और दूसरा जो है ओरिएंट कॉकरोच है, ओरिएंट कॉकरोच का हुआ ब्लाटा ओरिएंटालिस, ब्लाटा ओरिएंटालिस। एक अमेरिकन स्पीसीज का होता है, ध्यान दीजिएगा, अमेरिकन स्पीसीज का कॉकरोच पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, जिस स्पीसीज का वर्णन आज हम लोग करेंगे, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। और जो ऑस्ट्रेलियन कॉकरोच है माय डियर फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलियन कॉकरोच को कहा जाता है पेरीप्लैनेटा ऑस्ट्रेलेशियाई, ऑस्ट्रेलेशियाई, पेरीप्लैनेटा ऑस्ट्रेलेशियाई। ध्यान से नाम नोट करिएगा, पेरीप्लैनेटा ऑस्ट्रेलेशियाई। इस तरह से आपने देखा कि ये कॉकरोच की स्पीसीज हैं, जिसमें हम लोग आज जिस स्पीसीज का डिस्कस कर चल रहे हैं वह हम लोगों की स्पीसीज है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना की। आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं इसकी कुछ हिस्ट्री को बताना चाह रहा हूं, सिंपल सी हिस्ट्री को बताना चाह रहा हूं, वेरी सिंपल। सबसे पहले कार्ल लिनियस, साइंटिस्ट लिनियस, कार्ल लिनियस ने 1758 में इसको कहा था कि यह जो है इसे ब्लाटा अमेरिकाना नाम दिया। लिनियस ने 1758 में ब्लाटा अमेरिकाना नाम दिया। अगर कोई पूछता है हु गिव द नेम ऑफ द ब्लाटा अमेरिकाना इन विच ईयर, आप बोलेंगे लिनियस, कार्ल लिनियस। दे हैव सिंपली गिव द नेम ऑफ दिस पॉइंट्स ऑफ द ब्लाटा अमेरिकाना। और डिगियर, साइंटिस्ट डिगियर ने 1773 में 1773 में से कहा ब्लाटा कैकिरैलिस, ब्लाटा कैकिरैलॉक, बाद में से कन्वर्ट किया गया ब्लाटा कैकिरैलिस कहा गया, जबकि सही नाम इसका है ब्लाटा कैकिरैलॉक। नाम नोट करिएगा, ब्लाटा कैकिरैलॉक। और नाम दिया इसी ने साइंटिस्ट ब्रूमेस्टर ने 1838 में कहा कि ये पेरीप्लैनेटा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, पेरीप्लैनेटा नाम ये ब्रूमेस्टर का दिया हुआ है और ब्रूमेस्टर नाम दिया है 1838 में। ध्यान से इस बात को नोट कर लीजिएगा। और यह सामान्य रूप से गृह कटिबंधीय, अरे भाई सामान्य रूप से घरों में पाया जाने वाला, जिसको हमने कहा कि एक गृह कटिबंधीय है, जहां पर गोदाम होते हैं, जहां पर अनाज इनको आसानी से उपलब्ध हो जाता है, वहां पर ये पाए जाते हैं सिंपली। तो ये गृह कटिबंधी या जो है मोस्टली अफ्रीका की स्पीसीज है और जो हमारे यहाँ भी सामान्य रूप से इसके लिए ज्यादा उपयुक्त है और यहाँ भी पाया जाता है। तो आइए अब हम आप मिल करके सबसे पहले हैबिट और हैबिटेट के विषय मैंने जो डिस्कस किया अभी आपके सामने आवास और स्वभाव क्या है इसका। तो माय डियर फ्रेंड, आवास और स्वभाव के विषय मैंने बता ही दिया कि जहां हल्का सा भी होल होगा, हल्का सा भी जो है स्पेस होगा, दरार होगी, उस स्पेस में आसानी से छुप जाते हैं, अपनी बॉडी को छिपा लेते हैं, चूंकि इनकी बॉडी
बाइलैटरली सिमेट्रिकल होती है, द्विपार्श्व सममित होती है, बॉडी चपटी होती है, फ्लैटेंड होती है। फ्लैटेंड होने के साथ ही साथ आपने देखा, चपटी होने के साथ ही साथ आपने देखा कि इनकी बॉडी कार्टिनस होती है, अर्थात ये आसानी से दरारों में चिपक जाते हैं और ऊपर और नीचे दोनों साइड से प्रोटेक्टेड होते हैं। और प्रोटेक्शन का रीजन इसका ये रहा कि इनकी बॉडी किसी भी अदर कंडीशन से इफेक्टेड नहीं हो सकती। और इनकी जो बाहर की जो श्रृंगिकाएं होती हैं, हेड पर जो निकली हुई दोनों बड़ी बड़ी श्रृंगिकाएं होती हैं, ये आसानी से दरारों में रह करके अपनी श्रृंगिकाओं को बाहर निकाल देते हैं। जब इनकी श्रृंगिकाएं बाहर निकल जाती हैं तो बाहर निकल करके ये आसानी पूर्वक अपने चारों तरफ के वातावरण का ध्यान रखते हैं, कब इनका शत्रु इनके ऊपर आक्रमण करने वाला है, कब ये कहाँ सेफ है, कहाँ सुरक्षित है, कहाँ अपने को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पा रहे हैं, कौन सा प्लेस इनके लिए प्रोटेक्टिव प्लेस है। ऐसे प्लेसेस पर जा करके जो है आसानी पूर्वक छिपते हैं और ऐसे प्लेसेस पर बिल्कुल नहीं जाते जो कि इनके लिए डेंजरस हो। इस बात का ध्यान इसीलिए आसानीपुर के गोदामों में या खाद्य स्थान जहां पर अनाज या जहां पर भोजन बनाए जाते हैं, रसोई घरों में या ऐसे स्थानों पर जहां पर मैक्सिमम अमाउंट में गो डाउन किया जाता है, मीन्स जहां पर अनाज को डंप किया जाता है, ऐसे प्लेसेस पर जो इनके लिए उपयुक्त मात्रा में सामान्य रूप से भोजन जहां पर इनको उपलब्ध हो सके, वहीं पर जाकर के जो है आसानी से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि ऑमनीवोरस हैं, सर्वाहारी हैं। अगर यह कहा जाए कि इंसेक्ट सिर्फ हर्बीवोरस है या कार्निवोरस है, नो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑमनीवोरस, ये सर्वाहारी है। आवश्यकता पड़ेगी तो लकड़ी को भी खा लेगा, आवश्यकता पड़ेगी तो जूते को भी खा लेगा, आवश्यकता पड़ेगी तो चमड़े को भी खा लेगा, आवश्यकता पड़ेगी तो ये अनाज को भी खा लेगा, आवश्यकता पड़ेगी जो भी इसको मिलेगा, ये ऑमनीवोरस है, सर्वाहारी है। क्या है? सर्वाहारी है। जो भी इसको मिलेगा वो खाता जाएगा। जैसा मैंने 4 स्पीसीज आप लोगों को बताया, जिसमें हम यह कमेंट जो शो कर रहे हैं, सारा कमेंट शो कर रहे हैं पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना का, जो कि अपने यहाँ पाया जाने वाला है। अपने यहाँ की जो स्पीसीज पाई जाती है वो पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना की पाई जाती है। तो माय डियर फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट्स, माय लर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा, जितने टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, ये सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और ये सब के सब डॉक्टर आर्यल कोटवाल की बुक से हैं। और इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको बताया जा रहे हैं, ये सब नोट करते चलिएगा। और अभी आपको और भी बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे। अभी तो मैं सिर्फ हैबिट और हैबिटेट के विषय में आपको बता रहा था, आप लोगों को हैबिट और हैबिटेट के विषय में बता रहा था। मैं आपको एक भी और चीजें बता देना चाहता हूं कि काकरोच की पेरीप्लैनेटा और ब्लाटा जातियों में क्या अंतर होता है। पेरीप्लैनेटा और ब्लाटा जातियों में क्या होता है? पेरीप्लैनेटा ये भूरे रंग के होते हैं और लगभग ये 44 मिलीमीटर लंबे होते हैं, 44 मिलीमीटर लंबे होते हैं। इनकी लंबाई जो होती है 44 मिलीमीटर होती है, जबकि ब्लाटा की लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर जो है मिलीमीटर लंबी होती है। ब्लाटा की लंबाई 20 से 25 और जो है पेरीप्लैनेटा की लंबाई 44। ध्यान दीजिएगा 44। ध्यान दीजिएगा कि इसमें नर और मादा दोनों में पंख विकसित होते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि दोनों तो पंख विकसित करते हैं, दोनों के पंखों की, पेरीप्लैनेटा के नर और मादा दोनों के पंखों की लंबाई समान होती है। पेरीप्लैनेटा के नर और मादा दोनों के पंखों की लंबाई समान होती है। लंबाई, पंखों की लंबाई जिससे फ्लाइंग करते हैं, उड़ते हैं, जिससे अपने बॉडी को कवर करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अपने बॉडी के लिए। जरा सा ब्लाटा में देखिएगा आप लोग, ब्लाटा में मादा के पंख अवशेषी होते हैं, मादा के पंख वेस्टिजियल हैं, अवशेषी हैं। और ध्यान से इस बात को भी नोट करिएगा कि पेरीप्लैनेटा में जो अंड का कवच होता है, एक की जो एक कोट होती है जिसको ओथिका बोला जाता है, ओथिका जो होता है लगभग 12 मिमी होता है, 12 मिमी 12 मिलीमीटर, 12 मिलीमीटर 12 मिमी, जबकि ब्लाटा में यह ओनली 8 मिमी होता है। ब्लाटा में ओनली 8 मिमी होता है। तो माय डियर फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको सामान्य रूप से इसके टॉपिक्स, इसके पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए, बताए। और एक्सोस्केलेटल इसके क्या क्या रहे। देयर बॉडी आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हेड, ध्यान दीजिएगा, थोरैक्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। बॉडी कितने भागों में बांटी गई? 3 पार्ट में। हेड, सिर, थोरैक्स, वक्ष, एब्डोमेन, उदर। इस शरीर के इनके 3 खंड होते हैं, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। तो शरीर के जो 3 भाग हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, जिसमें हेड जो होता है,
हेड बहुत ही कोमल, बहुत ही सॉफ्ट रूप से ये थोरैक्स से जुड़ा होता है और इसीलिए अपनी गर्दन को किसी भी दिशा में ये 90 डिग्री पर बेंड होता है। ध्यान दीजिएगा, ये थोरैक्स से हेड इसका 90 डिग्री पर इस तरह से बेंड होता है और आसानी पूर्वक अपने सिर को इस तरह से झुकाए रखते हैं और जो आई इनके फ्रंट पर होते हैं या इनमें कंपाउंड आई पाए जाने की वजह से ये आसानी पूर्वक भी एक ही दिशा में रख करके अपने चारों तरफ दिशाओं का वर्णन करते रहते हैं, देखते रहते हैं। और अगर इनको आभास जरा से भी हुआ, अपनी श्रृंखलाओं से जो है उससे उसकी श्रृंखलाओं की सहायता से ये पता लगा लेते हैं कहां पर इनको रहने के लिए जो कंफर्टेबल है और कहां पर रहने के लिए डिस्कंफर्टेबल है। जहां पर कंफर्टेबल प्लेस होगा वहीं पर जाकर के रहते हैं। या मैंने इनके लिए सिंपल सा पॉइंट और इसके मैं फिगर्स भी अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दे रहा हूं। आप सभी लोग इनके फिगर को देख करके इनकी लेवलिंग जरूर कर लीजिएगा। मैं इनके फिगर भी अभी जो है अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दे रहा हूं। इस तरह से आपने देखा। आइए जरा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा जाए माय डियर फ्रेंड। आइए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा जाए। अब इनके जो आपको लर्न करने वाले पॉइंट हैं, जो कम्पिटेटिव पॉइंट्स हैं, उनको देखिए आप लोग। कम्पिटेटिव पॉइंट यह है कि अगर ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन भ्रूणावस्था में ये देखा गया कि भ्रूणावस्था में इनका शरीर लगभग 20 खंडों का 20 सेगमेंट्स होते हैं। इसमें नोट करिएगा 20 सेगमेंट होते हैं। कब होते हैं? एम्ब्रियोनिक कंडीशन में। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में 20 सेगमेंट देखा गया। 20 सेगमेंट सिर्फ कब देखा गया? एम्ब्रियोनिक कंडीशन, भ्रूणावस्था में देखा गया है कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में 20 सेगमेंट होते हैं। जिस 20 सेगमेंट को मैं डिवाइड कर रहा हूं, इस 20 सेगमेंट को मैं अलग अलग डिवाइड कर दे रहा हूं। 20 सेगमेंट में 6 सेगमेंट जो होता है ये सिर्फ हेड में होते हैं। माने 6 सेगमेंट ये कहां पर हो गए? हेड में हो गए। 6 सेगमेंट, 6 खंड कहां पर पाए जाते हैं? सिर में इसके 6 खंड होते हैं, जो वयस्क होने पर एक खंड बना लेते हैं। ध्यान दीजिएगा। और थोरैक्स में इसके देखिएगा 3 खंड होते हैं। 3 खंड हो गए थोरैक्स में। ध्यान दीजिएगा, थोरैक्स में इसके कितने होते हैं? 3 सेगमेंट होते हैं। 6 सेगमेंट हेड में, थोरैक्स में 3 सेगमेंट। और माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, 11 सेगमेंट इसका होता है एब्डोमेन। ध्यान से देखिएगा, 11 सेगमेंट हो गया एब्डोमेन। एब्डोमेन ध्यान से नोट करिएगा इसको आप लोग। तो अगर आप टोटल ऐड करेंगे तो आप देखिएगा ये टोटल हो जाएगा 20 सेगमेंट। ये 20 सेगमेंट की इनकी पूरी बॉडी होती है। कब होती है? ये होती है सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय। लेकिन जब ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कर लेते हैं तब इनकी बॉडी में ये सेगमेंट समेकित हो जाते हैं, ज्वाइंटेड हो जाते हैं। और जब ये ज्वाइंटेड हो जाएंगे तो उसके लिए आपको ध्यान देना है, जो 6 सेगमेंट ज्वाइंटेड हुआ है, 6 खंड जो एक साथ समेकित हुए हैं, 3 खंड एक साथ समेकित हुआ है, 11 खंड जो है एब्डोमेन का हुआ है। ये सारे खंड जो समेकित होकर के 6 खंड एक साथ समेकित हो गया तो एक खंड बना लिया। इस तरह से इसमें खंडों की संख्या अलग अलग हो जाती है। मैच्योर होने पर इनमें खंड जो है कम हो जाती है, क्योंकि मैच्योर होने की कंडीशन में इनके खंडों की संख्या समेकित हो जाती है। तो मैं जो है आपको जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूं सबके फिगर अपलोड कर दे रहा हूं। आप लोग सारे फिगर को नोट करते रहिएगा और सारे फिगर को पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। गति की स्थिति को अगर देखा जाए तो सामान्य रूप से ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, मीन्स एट ए रूम टेम्परेचर। एट ए रूम टेम्परेचर, ध्यान रहे, ये केमिस्ट्री वाला मैंने पहले बता दिया कि रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी इस रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर सिंपली अगर हम देखें कि यह जो होता है कि 1 सेकंड में लगभग 130 सेंटीमीटर, मीन्स 1 मीटर 30 सेंटीमीटर ये भाग सकता है। आसानी से ये दौड़ सकता है, भाग सकता है। ध्यान रखिएगा, दौड़ सकता है। लेकिन वहीं पर ये जो इतना तेज से भाग रहा है, अगर इसको और भी कंडीशन मिलती है, मैंने कहा कि इनके विंग्स जो होते हैं, पंख जो होते हैं, वीक होते हैं, इसलिए ज्यादा फ्लाइंग नहीं कर पाते। अगर शत्रु से बचना हो तो वो फ्लाइंग कर लेते हैं। यदि इन्हें अपने शत्रुओं से बचना हुआ तो ये क्या करते हैं? फ्लाइंग करते हैं। अपने शत्रु से बचने के लिए उड़ जाते हैं, भाग जाते हैं। इस तरह से आपने देखा उड़ भी जाते हैं, दौड़ भी जाते हैं, भाग भी जाते हैं, आसानी से चल भी जाते हैं, चलते भी हैं ये। तो ये इंसेक्ट की विशेषता हो गई, जिसमें मैंने मोस्टली कहा कॉकरोच में। आइए देखते हैं, अगर हम इसके कॉकरोच के पार्ट को ध्यान से देखें तो एब्डोमेन में इसके 10 खंड, इसका जो 10 सेगमेंट्स एब्डोमेन में आपने देखा यहाँ पर एम्ब्रियोनिक कंडीशन में 11 सेगमेंट है और डेवलपिंग कंडीशन में ये 10 सेगमेंट्स और जो है ये उदर में होते हैं, एब्डोमेन में होते हैं और एक्सोस्केलेटन होता है, मैंने बताया।
और इनकी बॉडी क्यूटिकल की बनी होती, ध्यान दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट करेंगे कि इनकी जो बॉडी जो काइटिन की बनी होती है C32H51, ध्यान से देखिएगा, C32H51 N4O21 N4O21 ये काइटिनस होता है, ध्यान दीजिएगा। ये काइटिन का फार्मूला बताया मैंने आपको, ये काइटिन का फार्मूला है, ध्यान से नोट करिएगा आप लोग। 1 सेकेंड, एक बार फिर मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। C32H51 N4O21 एक काइटिन का फार्मूला है इनका, जिससे इनकी बॉडी कवर्डेड होती है, प्रोटेक्टेड होती है, सुरक्षित होती है, और ये अपने पूरे बॉडी को आसानी से सरवाइव कर ले जाते हैं और बिना कोई जो है क्षति पहुंचाए, बिना किसी भी प्रकार के क्लाइमेट की क्षति पहुंचाए अपने बॉडी को ये सरवाइव कर ले जाते हैं। इस तरह से आपने देखा कि यहां पर मैंने काइटिन के विषय में आपको समझाया, बताया, और इसके स्केलेटल के विषय मैंने बता दिया। और सिंपली अगर हम इसके एक बार देख लिया जाए, इसका जो है क्लासिफिकेशन देख लिया जाए, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा हो गया। क्लियर है अब इसीलिए मैं अब क्लियर कर रहा हूं कि आपका जो कॉन्फिडेंस है यहां पर क्लियर हो जाए कि फाइलम आर्थ्रोपोडा जॉइंटेड लेग वाले हैं। सब फाइलम मैंडिबुलेटा, भाई इसमें मैंडिबल है जो लोकोमोट करता है, भोजन खाने, चबाने, कुतरने के काम आता है, मैंडिबुलेटा। क्लास इंसेक्टा, इंसेक्ट के हो गए, ये मैंने डिस्कस किया। ऑर्डर आर्थ्रोपोइया, ठीक है, ऑर्डर आर्थ्रोपेट्रा, ध्यान से देखिएगा, ऑर्डर आर्थ्रोपेट्रा। जीनस पेरिप्लनेटा, स्पीशीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो अमेरिकाना की स्पीशीज डिस्कस कर रहे हैं, मैंने पहले आपको बता दिया। अब मैं एक बार आप नोट कर लेंगे, फाइलम आर्थ्रोपोडा, सब फाइलम मैंडिबुलेटा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर आर्थ्रोपेट्रा, जीनस पेरिप्लनेटा, स्पीशीज अमेरिकाना। माय डियर फ्रेंड्स, जीनस और स्पीशीज के नीचे अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, स्पीशीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, इसलिए आप देखिएगा यहां पर स्मॉल लेटर से शुरू किया गया है, अमेरिकाना स्मॉल लेटर से शुरू किया गया है, ये अमेरिकाना है, ये अमेरिकाना है, अमेरिकाना। इस तरह से आपने देखा कि जीनस और स्पीशीज यहां पर ये शो किए गए हैं। तो ये क्लासिफिकेशन इसका हो गया। अब हम आपको इसके माउथ पार्ट के विषय में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर चलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। माय डियर फ्रेंड्स, माय लविंग स्टूडेंट्स, माउथ पार्ट में जरा ध्यान दीजिएगा, इसके माउथ पार्ट कितने होते हैं आप लोग नोट करते चलिएगा, नहीं तो आप लोग एक एक करके जो है भी थोड़ा सा डिस्टर्ब में आ जाएंगे। इसलिए आप लोग खूब ध्यानपूर्वक इसके माउथ पार्ट को आप लोग नोट करते चलिएगा। माउथ पार्ट को आप लोग एक एक कर, जैसे मैं बताता चल रहा हूं, आप सभी लोग माउथ पार्ट को डिस्कस कर नोट करते चलिएगा। पहला इसका माउथ पार्ट होता है मैंडिबल। मैंडिबल, ध्यान दीजिएगा, MANDIBLE, MANDIBLE, मैंडिबल। मैंडिबल फर्स्ट पार्ट होता है इसका मैंडिबल, जिसका सिंपल सा प्रोसेस आप देखिए, इस तरह का होता है, इस तरह का। इसमें माय डियर फ्रेंड इस तरह से ये दांत बने होते हैं, इस तरह से। इनसे ये करता क्या है, इसका सबका फिगर अपलोड कर दे रहे हैं अपने चैनल पर। इससे मैंडिबल और मैग्जिला, हम लोगों मैग्जिला होता है ना, ऊपरी जबड़े को मैग्जिला और निचले को मैंडिबल बोलते हैं। तो इसमें मैंडिबल क्या करता है, ए लोकोमोट होता है, कुतरने के काम में आता है, काटता है मैंडिबल। अब एक एक करके मैंडिबल में, इसीलिए मैंने कहा कि इसको मैंडिबुलेटा भी बोलते हैं। दूसरा होता है लैब्रम, ध्यान दीजिएगा, सेकंड पार्ट होता है लैब्रम। ये लैब्रम होता है, ये फर्स्ट पार्ट मैंडिबल, सेकंड पार्ट लैब्रम हो गया। थर्ड पार्ट इसका जो होता है वो हाइपोफायरिंग्स। थर्ड पार्ट इसका जो होता है वो है हाइपोफायरिंग्स। माय डियर फ्रेंड्स, सबके सब फिगर अपलोड किए जा रहे हैं, आप लोग टोटल फिगर एक बार डिस्कस करके देख लेंगे खूब ध्यान से, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि ये समझ में नहीं आया, दिक्कत हो रही है। तो एक एक पार्ट में बता रहा हूं, मैंडिबल, लैब्रम, हाइपोफायरिंग्स, जैसे जैसे इसमें निकाला जाता है। ये पहले इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल के एग्जाम में था, लेकिन गवर्नमेंट के बैन करने से इंसेक्टों के ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा था और इसीलिए इसको प्रैक्टिकल से निकाल दिया गया, रिमूव कर दिया गया। नहीं तो इसके माउथ पार्ट को टोटल आपको निकालना पड़ता था। एक स्लाइड लेते थे, स्लाइड पर ग्रीस लगा देते थे, ग्रीस पर एक एक माउथ पार्ट को निकाल करके उसी ग्रीस पर चिपकाते चले जाते थे। बहुत ही रेयर केसेस की ग्रीस लगाई जाती है कि वो ट्रांसपेरेंट हो
और आसानी से उस पार्ट को निकाल करके शो किया जाता था कि ये मैंडिबल है, ये इसका लैब्रम है, ये हाइपोफारिंक्स है। हाइपोफारिंक्स मैग्जिला, ध्यान से देखिएगा, चौथा भाग हो गया इसका मैग्जिला। मैग्जिला ये चौथा पार्ट हो गया इसका, ये मैग्जिला, MAIXLLA मैग्जिला, ध्यान से नोट करिएगा, ये मैग्जिला हो गया। मैग्जिला MAXILLA मैग्जिला। और लास्ट का पार्ट हो गया, पांचवा पार्ट इसका जो होता है वो होता है लैबियम। ध्यान से देखिएगा, LABIUM लैबियम। ये 5 इसके माउथ पार्ट होते हैं माय डियर फ्रेंड। कितने माउथ पार्ट होते हैं? 5 इसके माउथ पार्ट होते हैं। और 5 माउथ पार्ट में मैंने कहा है, मैंने बताया आपको, एक्सप्लेन किया आपको, ये 5 के 5 माउथ पार्ट्स इसके हम जो है अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दे रहे हैं, जिसको आप लोग आसानी पूर्वक डिस्कस करके सीख करके जान सकते हैं इसका इफेक्ट क्या है, इसके वर्क क्या है, इसके फंक्शन क्या है। तो इसमें एक एक करके हम आपको सबसे पहले लैब्रम पर देखते हैं। लैब्रम इसका जो है, लैब्रम इसको ऊर्ध्वोष्ठ या ऊपरी ओष्ठ, ऊर्ध्वोष्ठ या ऊपरी ओष्ठ जिसको कहा जाता है अपर लिप, अपर लिप LIP अपर लिप, इसको अपर लिप कहा जाता है। ये चौड़े होते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये चौड़े होते हैं। और मुख्य रूप से इनका जो है ये 2 पंक्तियों, माने एक इस साइड में, जैसे मैंडिबल एक इस साइड में होता है, दोनों साइड से मैंडिबल इस तरह से होते हैं। तो आसानी पूर्वक कैच को करने में माने दांतेदार सतह के कारण जो है इसके ओंठ ढके होते हैं, ओंठ को ढकने का काम करता है, और दांतेदार सतह से इसको तोड़ने का, किसी भी फूड पॉइंट को पकड़ कर सबसे पहले उसको पहले मुंह की तरफ ले जाता है, इसी तरह से पकड़ करके मुंह की तरफ ले आएगा इसको, फिर ये काटना शुरू करता है और उसको खाना शुरू करता है। मैंडिबल इसमें दंतिकाएं इसमें भी होती हैं, मैंडिबल में भी दंतिकाएं होती हैं। तो मैंडिबल में भी आपने देख लिया, और लैब्रम में भी आपने देख लिया, और मैंडिबल भी आपने देख लिया। और यहां पर मैंने जो अभी टाइप किया था, बताया था आपको, हाइपोफारिंक्स से जीवा की तरह, जीभ की तरह सेक्शन रचना होती है, जिसको हाइपोफारिंक्स नाम दिया गया, जिसकी सहायता से भोज्य पदार्थों को अंदर की साइड में ग्रहण करता चला जाता है। इस तरह से आपने देखा। और मैग्जिला, लास्ट का पॉइंट आप देख रहे हैं कि जो है मैग्जिला, लेफ्ट मैग्जिला होता है, राइट मैग्जिला, दोनों तरफ से मैग्जिला होते हैं, लेफ्ट और राइट। सबके फिगर अपलोड कर दिए जा रहे हैं, लेफ्ट मैग्जिला और राइट मैग्जिला। ये 2 मैग्जिला इसमें होते हैं, एक लेफ्ट साइड में होता है और एक राइट साइड में होता है। एक लेफ्ट मैग्जिला बोला जाता है और एक राइट मैग्जिला बोला जाता है। इस तरह से आपने देखा मैग्जिला इसमें जो होते हैं, कितने होते हैं? 2। लैबियम, ध्यान से नोट करेंगे, लैबियम इसका एक होता है, और लैबियम का फंक्शन जो है ये भोज्य पदार्थों को टुकड़ों में पीस करके जो है बॉडी के अंदर ले लेना होता है। अब ये जब भोज्य पदार्थों को बॉडी के अंदर ले लेता है, तब काम आ जाता है एलिमेंट्री कैनाल का। अब भोज्य पदार्थ तो इसने लिया, काटा, कुतरा, और उसे छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड किया, और छोटी छोटी पीसेस में डिवाइड कर देने के बाद अब ये उसको कहां पर ले लिया? अपने बॉडी के एब्डोमेन के अंदर ले लिया। अब इसके बॉडी के एब्डोमेन में आ गया। अब माय डियर फ्रेंड यहां पर पहुंचा कैसे? और आइए देखते हैं, आइए देखा जाए कि यहां पर ये इसका डाइजेशन कैसे होता है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वह है कि डिस्क्राइब द होल पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द कॉकरोच। एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द कॉकरोच और डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द कॉकरोच or describe the or make the well level diagram of digestive system of cockroach, or describe or make the well level diagram of alimentary canal of cockroach, digestive system of cockroach, alimentary canal of cockroach। इस तरह से आपसे क्वेश्चन राइज करता है। तो आइए एक एक करके ध्यान से देखें, और इसके विषय में कुछ वर्णन मैं करने चल रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको सिंपली बता दूं कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम तो किस प्रकार से बनेगा, और डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर मैं अपलोड कर दे रहा हूं, वहां पर भी आप लोग इसको देख लीजिए। सबसे पहले आप देखिएगा दोनों साइड में, इसके दोनों साइड में, यहां पर भी इस साइड में, दोनों साइड में आप देखेंगे, इसके इस साइड से इस साइड से, तो दोनों साइड में यहां पर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो दोनों साइड में यहां पर आप देखेंगे एक सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती है। इस तरह से एक सैलिवरी ग्लैंड यहां पर आ गया, एक क्रॉप इसका। इस सैलिवरी ग्लैंड ध्यान से देखेंगे, इस सैलिवरी ग्लैंड ध्यान से देखेंगे इसका।
आइज होते हैं यहाँ पर, कंपाउंड आइज। और इस तरह से आपने देखा कि अंगूर के गुच्छे के समान, अंगूर के गुच्छे के समान इसमें इस तरह से छोटी छोटी कुपिकाएं होती हैं। ये छोटी छोटी कुपिकाएं होती है इस तरह से, जो कुपिकाओं के द्वारा ये सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा जिससे सिक्रीट होता है, ये पूरी तरह से कवर्डेड होते हैं, ढके हुए होते हैं। ये सैलिवरी ग्लैंड जो आपने देखा कि माउथ पार्ट्स के दोनों साइड में है, ये सैलिवरी ग्लैंड इस साइड में भी आपने देखा, इस साइड में भी आपने देखा, ये सैलिवरी ग्लैंड कुपिकाओं के द्वारा घिरे हुए होते हैं। और सैलिवरी ग्लैंड जहां पर कुपिकाओं के द्वारा घिरा हुआ है, इसमें छोटी छोटी कुपिकाएं होती हैं, इनमें सलाइवा फिलअप होता है। और जब भोजन कुतरने का काम करते हैं तो यही सलाइवा उस जाकर के इस तरह से आकर धीरे धीरे भोजन में मिक्सअप होता जाता है, और ये सलाइवा आकर धीरे धीरे भोजन मिक्सअप हो जाता है। और यहाँ पर आपने देखा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर का स्पेस देखिएगा आप लोग ध्यान से। अब हम यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा गिजार्ड का पार्ट होता है, थोड़ा सा गिजार्ड का पार्ट होता है, एक गिजार्ड का पार्ट होता है जिसको जो है सिंपल भाषा में गिजार्ड, जो भोजन को कर्स करने का काम करता है। गिजार्ड के पार्ट के ठीक नीचे आप देखेंगे फिंगर लाइक ऐसे अंगुली जैसे ये उभार होते हैं, ये अंगुली जैसे उभार होते हैं, इस तरह से अंगुली जैसे उभार होते हैं, आप देख सकते हैं इसमें अंगुली जैसे उभार होते हैं इस तरह से, जिनको हम बोलते हैं सिंपली इनको बोला जाता है माइल, इनको हिपैटिक सिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हिपैटिक सिका बोलते हैं, इनको बोला जाता है हिपैटिक सिका। ध्यान से नोट करिएगा, हिपैटिक सिका बोलते हैं इनको, ये हिपैटिक सिका हो गए। और यहाँ पर हिपैटिक सिका के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो स्टमक है इसका, चाहे इसको आप इसे स्टमक बोल सकते हैं या क्रॉप बोल सकते हैं, CROP क्रॉप बोल सकते हैं। और ये दो की दोनों जो है इसमें कौन क्या है? ये सैलिवरी ग्लैंड है। क्या है ये? सैलिवरी ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड है। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये सैलिवरी ग्लैंड पाए गए, और सैलिवरी ग्लैंड के बाद यहाँ पर ये क्रॉप आ गया है इसका। और अब इसके बाद इसके एलिमेंट्री कैनाल के और पार्ट को आप देखिएगा ध्यान से, इस तरह से इसका एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पर आप देखिएगा, ये देखिएगा ये इस तरह से ये एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर ये देखिएगा थोड़ा सा सकरा हो जाता है, और सकरा हो जाने के बाद फिर ये चौड़ा हो जाता है, सकरा हो जाने के बाद फिर ये चौड़ा हो जाएगा, और फिर चौड़ा हो जाएगा, और चौड़ा होने के बाद ये धीरे से फिर सकरा होकर के जाता है और रेक्टम में जाकर के ओपन हो जाता है। इस तरह से आपने देखा कि इस तरह से रेक्टम होता है, यहाँ पर इसका मलाशय होता है, और यहाँ पर ये ढेर सारे ऐसे इस तरह से जो है देखेंगे आप, इसको बोला जाता है सिंपली अगर इसको कहते हैं माइलपिगियन ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं इसको? माइलपिगियन ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। कि माइलपिगियन ट्यूब्यूल्स हो गए, और माइलपिगियन ट्यूब्यूल्स के बाद आ गया रेक्टम। तो अब एक बार फिर से सबका नाम देख लीजिएगा, इसी को कोलन बोला जाता है, ये कोलन हो गया। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इस तरह से, यहाँ पर देख रहे हैं इसको मीजेंट्रॉन, ये मीजेंट्रॉन हो गया, इसी को मीजेंट्रॉन बोला जाता है, ये मीजेंट्रॉन हो गया। और ये जो है हिपैटिक सिका हो गया, और यहाँ पर ये हिपैटिक सिका हो गया। ध्यान से देखिएगा, इसको हिपैटिक सिका बोला जाता है। यहाँ पर ये माइलपिगियन ट्यूब्यूल्स बोले जाते हैं, इनको माइलपिगियन ट्यूब्यूल्स बोला जाता है इनको। और लास्ट में जो है रेक्टम बोला जाता है, जहां से ये वर्ज्य पदार्थों को शरीर की दैनिक क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, ये बाहर निकाल देते हैं। तो माय डियर लविंग स्टूडेंट्स, ये रहा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल, जिसको कि मैंने एक फिगर के थ्रू भी, इसका फिगर भी मैं अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दे रहा हूं। आप लोग इसका जो है आसानी पूर्वक इसको देखेंगे ध्यान से, और इसके सारे पार्ट को जो है याद कर लेंगे। सैलिवरी ग्लैंड जिससे सलाइवा सिक्रीट होता है, जो इसके आप देखें थोरैक्स रीजन पर के ऊपर जो है, और माउथ पार्ट्स के नीचे जहां पर माउथ इसका क्लोज होता है, यहाँ पर उसी जगह पर ये सैलिवरी ग्लैंड जाकर ओपन होते हैं, जिससे सलाइवा निकल करके इनके भोज्य पदार्थों को जो है वो क्या करता है, वो सलाइवा निकलता जाएगा और भोज्य पदार्थों को नम बनाता जाएगा, जिससे डाइजेशन इनको हेल्पफुल होता है। और यहाँ पर आगे देखिए क्रॉप आता है, क्रॉप में फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं, स्टोर करने के बाद आप देख रहे हैं सीकम आते हैं, हिपैटिक सिका बोला जाता है, यहाँ से हिपैटिक जूस निकलता है। ठीक इसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे मीजेंट्रॉन होता है, जिसको मिड गट के नाम से जाना जाता है। मिड गट, फोर गट, मिड गट, हाइंड गट, 3 गट में इसको डिवाइड किया गया, फोर गट, मिड गट, हाइंड गट। तो फोर गट इसका अगला पार्ट हो गया, मिड गट इसका जो है एलिमेंट्री कैनाल का मिडिल पार्ट हो गया, और हाइंड गट जो है इसके पार्ट का पार्ट हो गया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो है 3 पार्ट में जो डिवाइड किया गया। अब लास्ट के पार्ट में देख रहे हैं माइलपिगियन ट्यूब्यूल है, कोलन है, रेक्टम है। रेक्टम मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि रेक्टम का काम होता है, मलाशय का काम होता है, जो वर्ज्य पदार्थ बॉडी में बना हुआ होता है, उस वर्ज्य पदार्थ को ये स्टोर करके बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं। इस तरह से अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो देख रहे हैं आप
गिजर्ड जो है, गिजर्ड का काम मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है। गिजर्ड का काम कॉकरोच, सॉरी इसमें मैंने आपको जो है फेरेटिमा पोस्टुमा में, संघ एनिलिडा में मैंने आपको बताया, फाइलम एनिलिड्स में मैंने आपको बताया है, जिसमें मैंने आपको बताया था जो है केचुए में कि गिजर्ड जो पाया जाता है उसका भी काम होता है, वो भोजन को पीसता है, छोटे टुकड़ों में विभाजित करता है। यहाँ भी गिजर्ड का वही काम होगा कि भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना है। इसमें लगभग 6 से लेकर के इसमें 6 से 7 8 तक देखे गए हैं, लेकिन मोस्टली पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना में अगर देखा जाए तो 6 दांत इसमें पाए जाते हैं। दांत जो पूरी तरह से जो है कार्टिनस होते हैं, और ये कार्टिनस के होते हैं, और ये दांत जो इतने मजबूत होते हैं कि जो गिजर्ड के अंदर पाए जा रहे हैं किस भोज्य पदार्थों को पीस देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में एकदम बदल देते हैं। इस प्रकार से हम देखें भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने का काम कौन कर रहा है? गिजर्ड कर रहा है। कौन कर रहा है? गिजर्ड कर रहा है। तो गिजर्ड ने भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया और रेक्टम ने इनको बॉडी से बाहर निकाल दिया। तो इस तरह से आपने एलिमेंट्री कैनाल तक के डिस्कस को आपने देखा कि एलिमेंट्री कैनाल और सैलिवरी ग्लैंड क्या है, ये सारी बातों को मैंने आपको बताया है। और अभी इसका सर्कुलेटरी सिस्टम और अन्य सिस्टम इसके जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब इसमें जो है बचे हुए हैं, जिसको मैं पार्ट 2 में डिस्कस करूंगा, और वह हमारा नेक्स्ट मीन्स टुमारो, कल के हमारे YouTube के चैनल पर अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी, मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक लाइक न किया हो, शेयर न किया, सब्सक्राइब न किया हो, मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद उसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से खोज करके बनाया है, और मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसका जरूर से नोट बनाइए। और एक एक पॉइंट को मैंने डिस्कस किया है, और अपने जो लेक्चर में जहां जहां इसकी आवश्यकता पड़ेगी वहां पर मैं इसका फिगर भी देता रहूंगा, ताकि आपके सामने कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आप लोगों से आज के लिए विदा लेता हूं। कल फिर मैं आपसे इसका अगला पार्ट 2 करके हम मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।